Dr. Deepa Sharma, Honorable Pro Vice Chancellor Sir, Dr. S.D. Sharma, Registrar, all deans, directors, faculties, participants and dear students. I wholeheartedly welcome you all to the annual Tech Fest cum Exhibition 2023 of IIMD University. सर हमारा बेसिकली मेन पर्पज़ इसका है सर सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव मनी। सर इसका एडवांटेज यही है कि सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव मनी। सर हम इसका यूज़ सर जिम वगैरह जाते हैं आजकल हम, तो सर हम जिम में साइकिलिंग वगैरह करते हैं, तो सर उससे अच्छा है कि हम इसको फ्यूचर में इसका यूज हो, तो सर इसको हम पार्क में भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। लोग आजकल फिजिकल वर्क करने से बचते हैं और सर इसका जिम में जाके पैसे देते हैं। इससे अच्छा ये घर में इंस्टॉलेशन करा लें, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, कॉस्टली नहीं होता। इससे फ़ायदा यह है सर सुबह उठ के प्रैक्टिस कर सकता है आदमी, और सुबह साइकिलिंग होगा, उससे फ़ायदा होगा कि उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और सर इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर रहे हैं हम इससे। सर वाटर ऐसे लिफ्ट करेगा सर जैसे जैसे साइकिलिंग करेंगे। और गार्डन में वाटर सर्कुलेशन का पॉइंट। यस सर। यह मैसेजिंग LED फैन है, या रिप्रेजेंट कोई भी आपको डिजिटल रिप्रेजेंट करना हो, आपको कोई भी चीज़ नाम वगैरह कोई भी रिसेप्शन, तो उसमें ये काम करता है। इसमें आर्डिनो लगा हुआ है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बो रहता है, या एक मिनी छोटा सा कंप्यूटर भी कर सकते हैं, इस पर वर्क करता है। आपको दिख जाएगा, अंधेरा होता सब दिखता। इसे दिखा दो ना मोबाइल वाला ही है ये। Hello everyone, my name is Shivam and I am a student of BTech in Electrical Engineering 6th semester. So today is the technical fest of our college. So we have made the PMU based IEEE 14 bus system fault detection. Okay. So in this system, see basically this is phasor measuring unit. Okay. So in this system we are using the SCADA system. In the traditional mode in the running industry we are using SCADA system, but there are so many disadvantages for SCADA. So basically in SCADA the response is very slow in comparison to per phasor measurement unit. So phasor measurement unit is firstly proposed by United States in 2003. So generally for only 40 buses, 40 plants generally it was used. So currently Indian government has been set up for 1950 in plants, but it has not been implemented till now because it is very cost effective and we cannot dethrow and resubstitute the programs. Okay, so what is the benefit of the PMU? Phasor measurement unit are the most advanced technology in power system. The phasor measurement unit gives the default detection in phasor form as well as in waveforms. Okay, the waveforms, there are so many fault detection, it will simply detect, and it will after that detecting it will generate in the system. For the system we will be aware, but before that after awareing we can reduce the fault or consume the power losses of the industry, so that our system will be manageable. But for the state of Uttar Pradesh it is very cost effective, not very cost effective, because the mineral resources such as coal, uranium in Uttar Pradesh, they are very low. I belong to Jharkhand. Jharkhand is the best supplier of coal in the all over the India. This is the uppermost supplier of the coal. So in the Jharkhand the electricity bill and electricity performance are so much
cost effective with comparison to Uttar Pradesh. So this was our presentation, and we are working on the Scatter and MATLAB. After that we have shown the presentation. We will show later. Thank you very much. सर ये वैदिक प्लास्टर की एक टेक्नोलॉजी है जो 2015 में इम्प्लीमेंट की गई है। इसमें सीमेंट को हम चेंज कर सकते हैं वैदिक प्लास्टर के। जैसे इंडिया में जो सीमेंटेड हाउस होते हैं, रीइंफोर्समेंट हाउसेज होते हैं, उनकी कॉस्टिंग और एस्टिमेशन ज़्यादा बैठती है एज़ कम्पेयर टू अदर हाउसेज। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2015 में इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करा गया, बट ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया इंडिया में बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन इंडिया। सीमेंट और रीइंफोर्समेंट का यूज़ होता है इंडिया में, वैदिक प्लास्टर को ही इंडिया भूल गया है। सेकेंड थिंग, इंडिया में काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो नॉर्मली काफ़ी हद तक बनी हुई हैं, लाइक पल्सेस से बिल्डिंग बनाते थे पहले, काऊ डंग से लोग बिल्डिंग बनाते थे, जो कि हाई स्ट्रेंथ देती थी एज़ कम्पेयर टू सीमेंट और रीइंफोर्समेंट के जो भी हाउसेज होते हैं। सेकेंड थिंग, 2015 में सर एस चांद ने इसके ऊपर रिसर्च की और उसी को इम्प्लीमेंट करके काऊ डंग, गौमूत्र और लाइम का जिप्सम प्लास्टर बना के यूज़ किया और इसके वैदिक प्लास्टर इंट्रोड्यूस किया। बट वैदिक प्लास्टर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, बट इंडिया में ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ क्योंकि इंडिया ने मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्क अपना रखा है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। वैदिक प्लास्टर एक ऐसा प्लास्टर होता है जिसमें 4 टाइप के कंपोजिशंस मेन होते हैं। लाइम की कंसिस्टेंसी इसमें होती है 67%, गौमूत्र इसमें होता है 16%, काऊ डंग होता है 48% और नॉर्मली वाटर ऐड होता है। वाटर एडिटिव सीमेंट से सबसे कम होता है 5% ऑफ वाटर। सेकेंड थिंग, वाटर सेव करता है ये प्लास्टर बनाते टाइम। और सेकेंड थिंग, कोई भी ऐसा सीमेंट का जो भी हाउस होता है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, बट एक वैदिक प्लास्टर पूरे कंस्ट्रक्शन फील्ड में, चाहे इंटरनेशनली ले लें या इंडियन मार्केट में ले लें, वैदिक प्लास्टर एक ऐसा प्लास्टर है जो क्लाइमेट के कंपैरेटिवली अपना टेम्परेचर को चेंज करता है हाउसेज में। लाइक अगर आप समर्स में हैं तो ये घर आपको ठंडक देगा एंड वाइस वर्सा कंडीशन। सेकेंड थिंग, इसके 4 मेन फीचर्स होते हैं। हीट प्रूफ होता है ये, फायर प्रूफ होता है, रेडिएटेंट प्रूफ होता है और साउंड प्रूफ होता है। साउंड प्रूफ इन द सेंस, कोई भी सीमेंट की वॉल होती है अगर वो थिन बनाई गई, थिक नहीं बनाई गई, लाइक 200 mm या 300 mm की जो भी वॉल्स बनती हैं उसमें साउंड कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, बट इसमें अगर आप 100 mm की भी वॉल बनाएंगे तो वो साउंडनेस की आपको प्रॉपर्टी देगी और कंस्ट्रक्शन फील्ड में साउंडनेस बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग, सीमेंट और वैदिक प्लास्टर को अगर कंपेयर किया जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव वैदिक प्लास्टर है। अगर सीमेंट की कॉस्ट पर्टिकुलरली 500 ग्राम या 1 kg की बोरी हमको 600 तक की कॉस्ट की पड़ती है, तो वैदिक प्लास्टर हमको बैच नंबर के साथ 365 रुपीज़ में ही इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। सर, इसको इंडियन में इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इंडियन मार्केट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इतनी तगड़े तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कंस्ट्रक्शन में कि वैदिक पीरियड को लोग भूल गए हैं। हिस्टोरिकल में इंडिया से ही इंट्रोड्यूस हुई एक टेक्निक आज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही है, बट इंडिया ही उसको भूल चुका है। तो इंडिया में उसको टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है। This is hydrogen power plant. In this power plant, we are using solar energy to produce hydrogen for our uses, such as using hydrogen as a fuel and everything else. In this project, we have utilized solar panels to produce electricity, and through that electricity, we are using it in an electrolytic unit to produce hydrogen and oxygen. We are splitting water. We have used here carbon fiber electrodes. यहाँ से तो सर, ये जो ड्रोन है यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस लगाई हैं और इसके अंदर हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस जो लगाई हैं आप देख रहे होगे, ये जो है हमारा एड एंड फूड। इसके अंदर हम लोग फूड और एड रखेंगे और जो भी फ्लडेड एरिया या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोग कॉमन मैन नहीं जा सकता, हम वहाँ पे इस बॉक्स को लेके जाएंगे। और ये जो आप क्लैम्प देख रहे हैं, ये क्लैम्प जो है इसके अंदर जो है लग जाता है एंड ये जो है, इसको जरा कराओ क्लैम्प को, तो ये जो है ये क्लोज हो जाता है एंड ये जो है, ये जो वायर के थ्रू यहाँ पे ड्रोन से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये चला जाएगा उस एरिया में जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं और वहाँ पे ये फूड और एड को ड्रॉप करके आ जाएगा। इससे सर फ़ायदा क्या होगा हमारा कि इकोनॉमिकल वे होता है ना, ये कन्वीनियंट हो जाएगा। अगर हम लोग चॉपर से ये काम करते हैं तो चॉपर के अंदर फ्यूल जा रहा है, चॉपर मीन्स द हेलीकॉप्टर, तो उसके अंदर फ्यूल जा रहा है, मैन पावर लग रहा है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कई हद तक इस प्रोटोटाइप से सॉल्व करने की कोशिश की है। उसके बाद सर जो हमारा सेकेंड मोटिव आ जाता है, जो हम लोगों ने मॉडिफायर्स लगाए इसके अंदर, तो वो है हमारे सर पैराशूट ड्रॉपिंग। जैसे आर्मी मैन्स होते हैं सर, आर्मी मैन्स को आर्म्स की जो है शॉर्टेज हो गई, बुलेट्स हो गए, उनकी शॉर्टेज हो गई, तो ये क्या करेगा हमारा ड्रोन जो है पैराशूट से इस बॉक्स के अंदर सर
इस बॉक्स के अंदर जो भी हमारी आर्म्स या फिर गन्स जो भी रखी होंगी उनको लेके जाएगा एंड वहाँ डिप्लॉय करेगा जहाँ पे आपके आर्मी मैन शॉट कर रहे हैं गोलियों से। और सर हम लोग आपको पैराशूट भी दिखाना चाहेंगे, चीज़ करिए। तो सर यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसको एज अ रॉकेट यूज़ किया है यहाँ पे, और ये जो है इग्नाइटर है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ से हम लोग करंट पास करते हैं इस कनेक्टर से, तो ये जो है हमारा वायर जो है रेजिस्टेंस की वजह से हीट करता है। हीट करने से जो मैच स्टिक है ये जल जाती है। ये मैच स्टिक जलेगी तो हम लोगों ने यहाँ पे रखा गया है, एक फ्यूल रखा है जिसके अंदर इथाइल अल्कोहल होता है। ये हाईली फ्लेमेबल फ्यूल है सर। इसको हम लोग स्ट्रोक करते हैं यहाँ पे 2-3 बार, और उसके बाद जब हम इसको ड्रोन में लगा के और इसको नोज़ल के अंदर फिट करके हवा में ले जाते हैं, तो ये जो है ऑन करने पर जो है यहाँ पे कंबशन क्रिएट होता है। कंबशन क्रिएट होने से ये जो है रॉकेट, ये जो हमारा रॉकेट है प्रेशर के थ्रू बहुत आगे की तरफ जाता है, जिससे कि हम लोग चाहे तो इसको एज अ वेपन भी यूज़ कर सकते हैं। भाई पैराशूट दिखाओ। तो सर ये है हमारा पैराशूट। तो आप लोग सर आपने देखा होगा जैसे PUBG में होता है ड्रॉप होता है ना, वैसे ही हमारा ये पैराशूट भी है। और मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। तो सर ये पैराशूट है, और इसी पैराशूट से हम लोग जो है इसको ड्रॉप करेंगे एंड देन उसके बाद जो है आर्म्स जो है हमारे आर्मी मैन्स के पास पहुंच जाते हैं। गैस जो यहाँ पे आने वाले हैं उनको हम लोग ये फ्लावर ड्रॉप भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक चैम्बर है जिसके अंदर हम लोगों ने फ्लावर्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे ये जो सर्वो है, ये सर्वो हॉर्न जो है जैसी इधर की साइड होती है, तो ये जो यहाँ पे हमने कैप लगाई है वो जो है नीचे डाउन हो जाएगी वेट की वजह से फ्लावर के, एंड फ्लावर्स जो है नीचे गिर जाते हैं। Thank you, sir. This is all we have did, and we are going to do much more in future. Bye bye. Thank you. Bagi from 3rd year. The second team bagging second position is again from IIMD Engineering College, Civil Engineering branch. Athar Kumar and Ritik Kumar from 1st year. So big congratulations, Mohit. And the other group, other girl is, the next 3rd position winner is Chirag Malhotra for Vedic Plaster from SET Civil Engineering Department, IIMD University. Sir, present here, then please accompany the students. From School of Engineering and Technology, IIMD University, and the students are Shivam Upadhyay, Mohammad Farman, Ashish Rana from BTech 3rd year.